what we did in the last lecture, who will tell? Anji, last lecture. You can briefly describe that. No one? आपको कुछ समझ नहीं आया था? आया था? Then speak out. Just a basic idea. Yes. Who will tell? पहले ये तो बताओ किया क्या? हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज तो बहुत सारी हैं. So what we basically understood by the VB? मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया? It is a okay. Sequence of steps should not be there. In this, it is a user interactive. You can say graphical user interface. So VB is a GUI in which you are going to design some application. तो अगर हम graphical user interface कह रहे हैं, that means graphically we are going to develop application. हम कोडिंग के साथ नहीं, हम कुछ इंस्ट्रक्शंस तो लिखेंगे, no doubt for any control. But we are going to develop some application with the help of some controls. Controls बताए थे मैंने आपको, text box, label, radio. Remember? You are recall? So this is a sort of application. A user will interact with this application. That's why we are saying that it is graphically, because we are able to interact. We are able to enter our data. And what is this? This is called a form. And on the form, the controls will be placed. Controls will be placed on the form. So like this, we are going to create something. So here it will be a label, and for the corresponding label, there will be a text box. This is the text box, and this is the label. And when we will enter this data, we are going to write the data here. We are going to enter the data here. After entering, we need to click something. We need to press button. So this control is called button. This control is button. Okay. So this is helpful for submitting the data that you are going to enter here. Once you will enter the data, we will click on this and our data will get submitted. Okay. So these things we are going to create in VB. Right. Now I am saying if I am clicking on this, ये data submit कैसे होगा? जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूं, जहां मैं डबल क्लिक करूं, चाहे मैं कोई की प्रेस करूं, or if I am just moving my mouse over it. So what are these called? What are these? Events. That's why VB is an event-driven programming language. VB is a event-driven programming language. Now, why event-driven programming language? Because in this, the applications are created, and with those applications, some events are there, and on the event, we are going to do the coding. Coding कहाँ पे करनी है? Event पे. ये अपने दिमाग में बिठा लो आप. जब भी coding करनी है VB की, the coding should always be on some event. इसको note में लिख लो जाए. Coding is always be done on some event. Coding कहाँ पे होगी? Event पे होगी. Okay, coding is to be done on event. All right. So underline, it is a freeware software. That means it is freely available on the internet. You can download it. So while using an application, now listen carefully this line. Why it is called event-driven programming? जो मैंने अभी आपको बताया, the same thing. A user performs action such as pressing a key,
था की प्रेस करी है मैंने, मूविंग अ माउस, either you are single clicking, either you are doing the double clicking, you are selecting some checkbox or you are selecting some list item. Country की list item बनी होती है, so many list items are there and we are particularly selecting India out of it. तो वो क्या होती है, list items. Okay. So such actions are called events. हम इनको क्या बोलते हैं, events. The meaning of events are clear? Everyone? In the event-driven programming, the statements are not executed in the sequence in which they are written. You will click on whichever the button, those instructions will get executed. चाहे आपके पास इस पूरे फॉर्म के अंदर let's suppose these two buttons are there. This is first button and this is second button. First button के इवेंट पे भी आपने कुछ कोडिंग की होगी, सेकंड बटन के इवेंट पे भी आपने कोई कोडिंग की होगी. अब आपके माइंड में ये तो नहीं होना चाहिए कि ये फर्स्ट बटन है, ये सेकंड बटन है, तो पहले फर्स्ट बटन की कोडिंग एग्जीक्यूट होगी. नो, कौन सा बटन एक्टिवेट होगा, जिस बटन को पहले यूजर क्लिक करेगा उसकी कोडिंग वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगी. इट्स नॉट सो कि अगर आपने पहले बटन का पहले इंस्ट्रक्शन लिखी है, सेकंड की सेकंड में लिखी है, तो सीक्वेंस में होगा. नो, कौन सा बटन, कौन सा इवेंट पहले रन हुआ, रिलेटेड टू दोस इवेंट इंस्ट्रक्शन विल गेट एग्जीक्यूटेड एट अ रन टाइम. This meaning is clear? So they will only get executed when a corresponding event occur. तब एग्जीक्यूट होगी जब कोई ना कोई इवेंट अक्कर होगा. इवेंट कब अक्कर होगा, जब मैं किसी बटन को प्रेस करूंगी. अब किस बटन को मैं क्लिक कर रही हूँ पहले, डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी, दोज इंस्ट्रक्शंस विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट रिगार्डलेस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ राइटिंग. ओके, फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, लुक एट द बुक. So there are again two buttons are given, enter and exit. ठीक है. So when we click any one of them, it executes the task associated with it. It does not having any role कि पहले enter बटन की कोडिंग हुई है या पहले exit बटन की कोडिंग हुई है. जिसकी कोडिंग जिस सीक्वेंस में मर्जी हुई हो, लेकिन जिस टाइम पे कौन सा बटन पहले क्लिक होगा उसकी कोडिंग पहले एग्जीक्यूट होगी. So regardless of any sequence. Any doubt till now? The event driven, the concept of event driven is clear, meaning is clear. Why we are using VB, why VB is called as event driven, the things are clear. Sure everyone? Next, modes of visual basic program. Visual basic के program के 3 modes हैं हमारे पास. The first mode is design mode. Second mode is run mode. यहाँ पे क्वेश्चन भी बना लो. ब्रेक मोड. 3 modes of VB program. Name the 3 modes of Visual Basic program. Name the 3 modes of Visual Basic program. So first one is the design mode. As the name suggests, this is the state where we are going to create the object. Design मतलब related with this part. कि आप डिजाइन कर रहे हो अपने फॉर्म को, आप अपनी विश के अकॉर्डिंगली, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली यू विल डिजाइन योर फॉर्म ऑन योर ओन. कि क्या मुझे फॉर्म का बैकग्राउंड कलर रखना है, क्या मुझे लेबल रखना है, उसकी पोजीशन कहाँ पे रखनी है, किस जगह पे किस कंट्रोल की मुझे प्लेसमेंट करनी है. तो द डिजाइनिंग पार्ट इज रिलेटेड. तो डिजाइन मोड में हम क्या करते हैं, अपने फॉर्म की डिजाइनिंग करते हैं. ओके, सो डिजाइन मोड where you are going to create the objects and write the logical statements. Okay, next is the run mode. Run mode is where in which the statements are being executed by the user. जहां पे आप डिजाइनिंग के बाद अब अपनी एप्लीकेशन को रन करोगे, आपका पूरा का पूरा डिजाइन बन गया. रन मतलब इसको क्लिक कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो तो कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस आपकी एग्जीक्यूट हो रही हैं. So that is called run mode. ब्रेक मोड इज जब आपका एप्लीकेशन ये बीच में कहीं पे जाके इंटरप्ट हो गया और वहां पे कोई ना कोई एरर आ गया. इट इज क्वाइट पॉसिबल व्हेन यू हैव डिजाइन दिस एंड व्हेन यू आर इंप्लीमेंटिंग दिस, जब आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, रन कर रहे हो, उस टाइम पे अगर कोई एरर आ जाता है
और ये एप्लीकेशन आपकी एग्जीक्यूट ही नहीं होती है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक मोड की वहां पे वीबी प्रोग्राम आपका रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, डिजाइन मोड concerned with the designing part, run mode when you are running this program, you are running this application, break mode means whenever some error is there in the coding। अब वो कोडिंग में कोई भी एरर हो सकता है, आपने कुछ कोडिंग गलत कर दिया है, या कंट्रोल का नेम गलत लिख दिया है, जब कोडिंग कहीं और इवेंट पे कर दिया, करनी कहीं पे थी। आप सपोज करो आपने कोडिंग करी है की प्रेस पे, कि जब मैं एंटर की प्रेस करूं मेरी एप्लीकेशन रन हो, लेकिन आप कोडिंग लिख रहे हो बटन क्लिक पे, बटन क्लिक मीन सिंगल क्लिक, तो सिंगल क्लिक लगा रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि माउस एंटर की प्रेस करने पे हो, तो दोनों इवेंट डिफरेंट है ना, तो दैट विल एन एरर। तो जब भी कोडिंग करनी है ये हमने बहुत ध्यान से देखना है कि हम कोडिंग किस इवेंट पे कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी काम वीबी पे डिपेंड करता है दैट इज ओनली इवेंट। अगर इवेंट गलत हो गया तो होल एप्लीकेशन विल गेट रॉन्ग। ओके, so the three modes are clear, any doubt? Design mode, run mode, break mode, clear है? Next, how to start Visual Basic Express? The command is start button, all programs, Microsoft Visual Basic 2010 Express. Start button, all programs, Microsoft Visual Basic 2010 Express. So this is the command how you are going to open the or start the Visual Basic Express. Again a question here, how to start VB? How to start VB? Question बना लो। Any doubt? So once you will follow the command start all program, आपने Visual Basic जब रन किया, अपनी command को execute किया, after that you will get this window. At starting you will get this window. और friends एक एक book है? Any student is having two books on the table? सबके पास एक एक ही इधर, आप इकट्ठे हो जाओ बच्चे। किसके पास नहीं है? ओनली वन, आप चले जाओ उसके पास। गिव योर बुक टू देम, आप दे दो, नहीं तो अपनी बुक लिखो। अच्छा आपके पास तो है ही नहीं है, एक बुक दे दो उधर। Okay, so once you will follow the command, you will get this window. Now look at the window carefully, everyone. Window देखो, अब इस विंडो के ऊपर क्या क्या आ रहा है? फर्स्ट थिंग इज द न्यू प्रोजेक्ट। आर यू एबल टू फाइंड आउट द ऑप्शन न्यू प्रोजेक्ट? इसको टिक कर लो, ये ऑप्शन आ रही है, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट मीन्स जब आपने कोई भी न्यू एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, यू वांट टू क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन, so we will click on new project. Next is open project. Open project means you have already created any project, now you want to open the existing one, right? Recent projects, recent means कोई भी अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया, अभी आप उस पे रिसेंटली काम करे थे, तो वो यहाँ पे आएंगे ओनली रिसेंट प्रोजेक्ट पे। गेटिंग स्टार्टेड, तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड की एक टैब आ रही है, get started tab aa rahi hai, right? That is the getting started pane. So what it will give you, it will just give you some helpful tips to quickly design the application. So tips will be there. Latest news section, get started के साथ ही देखो next tab में latest news section आ रहा है, तो whatever the news regarding the software, कुछ उसमें अपडेशन हुई है, कोई न्यू रिलीज हुआ है वर्जन, so all those news will be, you can find it here. Now next is the property section, cross it, ये सेक्शन अवेलेबल नहीं होते, इसकी बजाय यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर आ रहा होगा, बट वो हम कंपोनेंट्स में डिस्कस करेंगे, तो कट दिस पार्ट, प्रॉपर्टी सेक्शन, इट इज नॉट इन दिस, ये लास्ट में प्रॉपर्टी सेक्शन, सो यू हैव टू कट दिस, ओके। सो बेसिकली स्टार्टिंग की टाइम पे कौन कौन सी विजुअल बेसिक के अंदर पेन्स आ रही हैं? न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट,
recent project, getting started, latest news. Okay, 5 panes. Is it clear? पहली वाली 5 panes appear होंगी, लास्ट वाला नहीं करना. Any doubt till now? Is it clear to all? Yes. Okay. Next, to create your VB application, you first need to click on. मैंने अभी आपको बताया जब आपने new create करना है तो हम किस पे क्लिक करेंगे? New project. You will click on the new project. When you will click on this option, what you will get? The new project dialog box will appear. You will click on new project. After clicking on this option, the new project dialog box will appear. Now this is the dialog box. This is new project dialog box. ठीक है, ये जो नीचे वाली विंडो है ये न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स है. मिल गया सबको? न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर आपने सबसे पहले वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन. हमने ये क्या बनाना है? ये क्या है? फॉर्म बनाना है. So what we will select? Windows Form Application. Now recall the steps again. जब आप कमांड फॉलो करोगे स्टार्ट ऑल प्रोग्राम से, you will click on the new project pane. वो एक टैब सी आ रही होगी. न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करके the new project window will appear. उस विंडो के अंदर what you have to select? Windows Form Application, right? So Windows Form Application को क्लिक करके you will select the button OK that is given at the down. Windows Form Application को क्लिक करेंगे, that is the first option. After selecting this, you will click on the OK button. Okay. So you may specify the name of the application in the name box, or you can choose it to save it later. Now there are two different ways for saving your application. चाहे तो आप जब फाइल पे जाके सेव करोगे, जब कंट्रोल एस के साथ करोगे तब आप सेव कर सकते हो. नहीं तो नेम बॉक्स में वहां पे प्रॉपर्टीज आ रही होंगी राइट साइड पे, प्रॉपर्टीज के अंदर ही फॉर्म का नेम चेंज कर दो. ठीक है, दोनों मेथड से कर सकते हो. अब देन ये आपने सब कुछ कर लिया, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन आपने खोल लिया, आपके पास रन हो गया. विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन के इमीडिएटली बाद ये विंडो अपीयर होगी. दिस इज द एक्चुअल वीबी इंटरफेस we are going to work. ठीक है, ये विंडो अपीयर होगी आपके पास. अब इसमें हमने जितना भी काम है ना सारा इस पे करना है. इस सेंटर का कोडिंग नहीं, डिजाइनिंग. डिजाइनिंग दिस इज रिलेटेड विद द डिजाइनिंग. दिस इज फ्रंट एंड. I told you two things, front end and back end. Front end means designing, back end means coding. ठीक है, कोडिंग जब करेंगे तो वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन फ्रंट एंड पे ये सारा फॉर्म डिजाइन होगा. आपने अपनी डिजाइनिंग करनी है, क्रिएटिविटी बनानी है, राइट? सो दिस इज द विंडो यू विल गेट आफ्टर द विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन. सो यहाँ पे क्वेश्चन बनाओ, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल बेसिक IDE. IDE stands for Integrated Development Environment. Integrated Development Environment. IDE, Integrated Development Environment. IDE का मतलब है it will provide us an interface where we can design, edit, compile and execute the application on a single platform. What does IDE means? IDE stands for Integrated Development Environment. IDE provides us the interface. It's given on the last line. यहाँ पे देखो अंडरलाइन कर लो. It will give us the interface. Interface मतलब हमें एक लेआउट दिखाई देगा जिसके थ्रू we can design our application, we can edit our application. Okay, we can design, edit और compile and execute the application on the single platform. एक ही जगह पे हमने यहाँ पे डिजाइन करना है, एक ही इसी जगह से हमने कोडिंग कर लेनी है और यहीं से ही हमने इसको एग्जीक्यूट रन करना है. मतलब कहने का मतलब एक ही जगह है जिसमें हमने सब कुछ करना है, डिजाइनिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड रनिंग. ओके, VB10 IDE, Integrated Development Environment. Now look at the components in the figure. First is menu bar, title bar as it is, which is in all the applications.
आप कोई भी एप्लीकेशन करते हो आपको सबसे पहला टाइटल बार ही दिखाई देता है. आप okay, what does the title bar contain? The name of the application. Name of a application, right? And the 3 control buttons on the right side, that is minimize, maximize and close. After the title bar, the next bar is the menu bar, as it is already in all the softwares. So menu bar, what are the menus in the VB? File, edit, view, project, debug, data, tools, window, help. साथ साथ में नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन अंडरलाइन करते जाओ. Title bar is present at the top of the window. It will display the name of the project or name of the application. Menu bar, it will just give you different menus through which you can interact and provide different type of commands. Different operations we can perform from the menu options. Name the menus available in the menu bar. Now next question here, frame this. Name the menus in the menu bar. Name the menus in the menu bar. Okay. Now after the menu bar we are having toolbar. अब आपके मन में आ रहा होगा जैसे एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार होती है, स्टैंडर्ड टूल बार होती है, इसमें कोई नेम नहीं होता, इसमें हम कॉमनली बोलते हैं टूल बार. VB में it's not standard or formatting, it is simply a toolbar. Okay, so toolbar contains icons which give access to the frequently used menu item. जो भी हम मेन्यू में जाके ढूंढते हैं अपनी ऑप्शंस, वही ऑप्शंस आपको सेम टूलबार पे मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल ओपन, सेव, न्यू. ठीक है, ये हमें मेन्यू में भी मिल जाती हैं ऑप्शंस. कट, कॉपी, पेस्ट, न्यू, ओपन, सेव, तो ये सारे ऑप्शंस आपको टूलबार पे भी मिलेंगे. All the recently used commands. So these icons act as a shortcut to the option. Okay. Third is the form window, जो actual window है जहाँ पे हमने सारा का सारा काम करना है. So form window, it is an interface through which a user interact. Assess में भी यही definition करी थी. Through which user interact with the form. कैसे interact कर रहे हैं? By entering the data. Okay. So it is an interface through which user interacts with the application. A form contain, क्या फॉर्म में कंटेन हो रहा है? क्या होता है फॉर्म के ऊपर? कंट्रोल. हम इन सबको क्या कहते हैं? कंट्रोल. तो फॉर्म कंटेन्स कंट्रोल्स सच एज, अब कंट्रोल के नेम बताए वो मैंने आपको पहले बता दिए. लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, लिस्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन. So all these are the controls which are present on the form. Using these controls, underline this link. Using these controls, a user can enter the data, give instructions to the application. The form window provides us the blank form where we can place the controls according to our own creativity or according to our own requirement. Any doubt? ये जितना मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था वही हम स्टडी कर रहे हैं. क्लियर? वही उतना ही अंडरलाइन कर रहे हैं बुक में से. एनी डाउट? ये सारे कंपोनेंट्स हैं. दिस इज अ फॉर्म विंडो वेयर वी आर गोइंग टू प्लेस अवर कंट्रोल्स एंड थ्रू द कंट्रोल्स वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन. हम अपनी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करेंगे. ऑलराइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज विंडो. ये फॉर्म आ रहा है. फॉर्म के लेफ्ट या राइट साइड पे ये सारी प्रॉपर्टीज आएंगी. ऑल द प्रॉपर्टीज विल अपीयर ऑन द राइट साइड. कंट्रोल्स कहाँ पे अपीयर होंगे? टूल बॉक्स में. टूल बॉक्स इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड. विंडो में देखो, कंट्रोल इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड. कंट्रोल्स किसके अंदर मिलेंगे आपको? टूल बॉक्स के अंदर. प्रॉपर्टीज कहाँ मिलेंगी आपको? राइट साइड. नाउ इन योर माइंड मे बी द क्वेश्चन इज किसकी प्रॉपर्टीज मिलेंगी? प्रॉपर्टीज ऑफ हू? कंट्रोल. व्हाटएवर द कंट्रोल यू हैव प्लेस्ड. अगर आपने करंटली सिलेक्टेड लेबल किया होगा तो लेबल की प्रॉपर्टीज शो होंगी. अगर आपने करंटली टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, तो टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज अपीयर होंगी. अब रिकॉल करो फोटोशॉप में क्या होता था. जौन सा भी टूल सिलेक्ट करते थे रिलेटेड टू दैट टूल, द ऑप्शन रिलेटेड आर कमिंग ऑन द ऑप्शंस बार. ऊपर ऑप्शन बार थी फोटोशॉप में. आप कोई भी टूल सिलेक्ट करते थे उस टूल की प्रॉपर्टीज ऊपर ऑप्शन पे आ जाती है. सेम वे वीबी में जब भी आप कोई टूल कंट्रोल सिलेक्ट करोगे, फोटोशॉप में टूल होता था
यहाँ पे कंट्रोल है, आप जोन से भी कंट्रोल सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल की प्रॉपर्टीज अपीयर होंगी प्रॉपर्टीज विंडो में। ठीक है, जिसकी भी प्रॉपर्टीज चाहिए आपने उस कंट्रोल को पहले सिलेक्ट कर लेना है माउस के साथ, सिंगल क्लिक करके सिलेक्ट किया, वो आपका कंट्रोल एक्टिव हो गया। उस एक्टिव कंट्रोल की प्रॉपर्टीज आपको प्रॉपर्टीज विंडो पे शो हो जाएंगी। ऑल राइट, so properties are the attributes that defines the appearance and behavior of the object. appearance मतलब किस तरह की प्रॉपर्टीज आएंगी, कंट्रोल का नेम रखने आपने, कोई कंट्रोल का कोई फोरग्राउंड कलर सेट करना है, बैकग्राउंड कलर सेट करना है, यू वांट टू गिव बॉर्डर, यू कैन चेंज फॉन्ट साइज, यू कैन सेट द अलाइनमेंट, यू कैन सेट फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको कंट्रोल की प्रॉपर्टीज विंडो में मिल जाएंगी कि आपने उसको कितना कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज विंडो से सेट करूंगी। ओके, सो व्हाट प्रॉपर्टीज यू कैन गिव, नेम, फॉन्ट, कलर, बॉर्डर स्टाइल, पैडिंग, साइज, टेक्स्ट। So these are the properties of the control. Property window is used to set the properties of form and other controls placed on them. So this is very important thing. Meaning of properties window clear? Yes, any doubt? Online students, Kashish, Aryan, Nilesh, Pearl, Vanika, Prableen. Any doubt बच्चे? The topic is clear? Sure? करें आगे? Okay. Know the fact underline करो. Visual Basic .NET is an evolution of the VB language. पहले VB आई थी, VB का ही एडवांस आता है .NET, VB.NET. Okay. That is targeted to develop Windows web and mobile applications. आप उसे मोबाइल एप्लीकेशन भी बना लेते हो .NET एप्लीकेशन. That is also a language. Okay. Now properties window के ऊपर देखो, there is one more window that is called Solution Explorer. This is called Solution Explorer. अब Solution Explorer आपको क्या शो करता है, हायरार्की। हायरार्की किसकी, कि आप क्या काम कर रहे हो। आपने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया, न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आपका एक फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर अगर एक और चाइल्ड फॉर्म बनाया तो आपकी हायरार्की डिटेक्ट करेगा कि आप एक्चुअल में काम किस रूट डायरेक्टरी में करें। ठीक है, कौन सी चीज किसको आगे फर्दर बिलोंग कर रही है। So Solution Explorer will display the list of forms and other objects that will help you make the application. The list is organized in the form of branching structure. Branching structure means hierarchy. जैसे विंडो एक्सप्लोरर लेवलिंग, जैसे आप सिस्टम खोलते हो तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, कंप्यूटर, डेस्कटॉप के ऊपर कंप्यूटर का आइकन, कंप्यूटर के अंदर ड्राइव्स, ड्राइव्स के अंदर फाइल्स एंड फोल्डर्स। सेम वे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर फॉर्म, फॉर्म के अंदर कोई फर्दर फॉर्म बनाया है तो सारा ये लेवल शो करेगा। ओके, यू कैन सी इन द एग्जांपल, जैसे इन्होंने बनाया माई प्रोजेक्ट, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन 1 लिया आपने, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन 1 के अंदर माई प्रोजेक्ट, ये आपके प्रोजेक्ट का नेम है, आप कुछ भी नेम रख सकते हो, उन्होंने माई प्रोजेक्ट रखा है। जब आप सेव करोगे तो यू कैन गिव योर ओन नेम। माई प्रोजेक्ट के अंदर फॉर्म का क्या नेम आ रहा है, form1.bb। यहाँ पे भी form1 आ रहा है। अगेन आप अपने फॉर्म को सेव करके कोई भी नेम दे सकते हो, यू कैन गिव योर ओन नेम। द एक्सटेंशन फॉर सेविंग द फॉर्म इज .bb. This is the extension for saving a form. Just a simple application. अब प्रोजेक्ट के अंदर it can be near multiple forms. एक प्रोजेक्ट के अंदर आप सपोज करो आपने कितने सारे फॉर्म बनाए हैं, that if it is having 2 forms, form 1, form 2, तो ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे शो हो रहा होगा कि एक प्रोजेक्ट के अंदर मेरे 2 फॉर्म्स आ रहे हैं। आप इंडिविजुअली फॉर्म को भी सेव कर सकते हो, so that अगर आपके पास लग रहा है कि एक जैसी एप्लीकेशन मैंने 1-2 जगह और बनानी है लेकिन मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर करने का सेम तो फॉर्मेट है, हर एप्लीकेशन में पर्सनल इंफॉर्मेशन तो सेम ही रहेगी ना, तो आपने सपोज करो फॉर्म
want to use this form in some other application as well, without making it from the scratch, you just want to use as it is. तो आप फॉर्म को भी सेव कर सकते हो with the extension .pp. This is the extension for saving a form. अगर आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेव करना है, प्रोजेक्ट को सेव करने की एक्सटेंशन होती है .ppproj. .ppproj. Extension for saving VB project is .ppproj. Extension for saving VB form .vb. पहले आप अपना नेम दोगे फॉर्म का, फॉर एग्जांपल my form .vb. This is a form. Okay. .vb for form, .vbproj for saving a project. पूरा प्रोजेक्ट भी सेव कर सकते हो, प्रोजेक्ट का वो इंडिविजुअल फॉर्म को भी सेव कर सकते हो. Visual Basic 2017 is the latest version. We people are using 2010 in our syllabus, but the latest version is 2017. Basic was launched by the Microsoft in 2017, and Visual Basic 2017 is bundled with the other programming languages, for example C or C++, C# and C++, F#, JavaScript, Python. तो इनको यूज करके we are going to build web applications or mobile applications. Now what is PHP? PHP is a widely used open source software. It is a language which is used for creating the websites. This is the application based language जिससे सॉफ्टवेयर बनते हैं. अगर आपको वेबसाइट्स बनानी है, वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो वो PHP लैंग्वेज में बनते हैं. PHP stands for Hypertext Preprocessor. Hypertext Preprocessor. This is the commonly used language nowadays. जितनी भी आपको रियल वेबसाइट दिख रही है ना इंटरनेट पे, सारी कोडिंग PHP में हुई है, because it is open source. It is not a Microsoft language. It is open source, open based language. Anyone can learn it and started making the projects. Freelancing आपने वर्ड सुने कभी? जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम नहीं करते, PHP सीखी घर बैठे बैठे फॉरेन से, US से, they are taking the projects, making the projects on their own at their home, घर पे सिस्टम लगा के, just using the PHP and earning so much of money. ठीक है, so PHP is widely used nowadays. PHP plus Python, it is in huge demand. Okay, so next is the toolbox. Toolbox means all the controls will be appearing in the toolbox. जितने भी सारे controls हैं वो कहाँ पे available होंगे? Toolbox पे. Toolbox कहाँ पे present है? Left side. Okay, the controls can be added to the form. अब controls कैसे add करने हैं? The question here is write down ways to add controls to the form. Ways to add controls to the form. First method is by dragging the controls onto the form. Dragging the controls onto the form. आप simply control को drag करके लेके आ रहे हो टूल बॉक्स से, और जहां पे भी drag करके रखने है उसको drop कर दिया फॉर्म पे. Second method, simply double click on the control on the form on the toolbox. आप कंट्रोल को डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने से ऑटोमेटिकली कंट्रोल आपका फॉर्म के ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आता है. कंट्रोल, डबल क्लिक ऑन द कंट्रोल इन द टूल बॉक्स. द कंट्रोल विल गेट एडेड टू द फॉर्म ऑटोमेटिकली. You can drag the control from the toolbox to the form. Secondly, you can double click on the control in the toolbox. डबल क्लिक करने से भी कंट्रोल ऐड हो जाएगा, या फिर कंट्रोल को ड्रैग करके लेके जाओगे, इवन देन द कंट्रोल कैन बी प्लेस्ड ऑन द फॉर्म. लास्ट इज कोड विंडो. कोड विंडो इज यूज्ड टू राइट द कोड्स फॉर एनी ऑब्जेक्ट. मतलब कोई भी कंट्रोल के लिए कोडिंग करनी है. So how to do it? You simply have to double click on the object on the form. Double click on the object on the form. तो ये आप जब आप डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने पे ये विंडो ओपन होगी. This window will appear and always there will be two lines
So these two lines are very important for the coding. आपने इस कोडिंग को इरेज नहीं करना किसी भी। कोडिंग इज प्राइवेट सब, यहाँ पे आ रहा है फॉर्म अंडरस्कोर लोड, ये इवेंट है। फॉर्म अंडरस्कोर लोड इज एन इवेंट। अगर आपको इवेंट की एग्जांपल पूछी जाएगी तो आप ये भी लिख सकते हो। फॉर्म अंडरस्कोर लोड मींस जब आपका फॉर्म लोड हो रहा है एट द टाइम ऑफ रनिंग। Clear? Form load means you are loading the form at the time of running the application. अगर मैं कह रही हूँ मुझे बटन क्लिक पे करना है तो यहाँ पे इवेंट का नेम होता है प्राइवेट सब बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक। लास्ट में लाइन आती है एंड सब। ये प्राइवेट सब और एंड सब में जितनी भी वीबी की कोडिंग करनी है हमने ये दो लाइन की इनफैक्ट वीव करनी है। This is default, by default coding will appear। जो हमने कोडिंग करनी है हमने ये दो लाइंस के बीच में कोडिंग करनी है और ये दो लाइंस को इरेज नहीं करना है। One thing more, just a second। How to open the code window? ये आपके पास एप्लीकेशन है, आपने एप्लीकेशन अपनी डिफाइन करी, आपने बनाई, नीट आपने लेबल लगाया और आपने टेक्स्ट बॉक्स लगाया, आपने एक बटन लगा दिया क्लिक। This is a front end. This is the form window where you are designing it. ठीक है, ये form window। कोड विंडो कैसे खुलेगा? कोडिंग कहाँ पे अप्लाई होती है? मैंने आपको लिखवाया। कोडिंग कहाँ पे अप्लाई होती है? इवेंट पे। इवेंट क्या है? बटन को क्लिक करना। तो जिस पे भी कोडिंग लगानी है, you have to double click on the control। जिस भी बटन पे कोडिंग लगानी है उसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने में क्या ओपन होगा? कोड विंडो विल गेट ओपन। डबल क्लिक ऑन द बटन, कोड विंडो विल ओपन। कोड विंडो के अंदर वहां पे आ रहा होगा प्राइवेट सब एंड एट लास्ट एंड सब। इन बिटवीन वी हैव टू डू अ वीबी कोड। ठीक है, वीबी कोड में अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कैसे करना है। ये चीज क्लियर हो गई। प्राइवेट सब और एंड सब के बीच में कोडिंग करनी है। वन थिंग मोर व्हाट यू हैव टू सी, ये क्लिक इवेंट पे कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरा क्या आना चाहिए था? बटन 1 अंडरस्कोर